اسلام آباد میں بچوں کی لڑائی میں بڑوں کا جھگڑا، مسلح تصادم میں 3 افراد قتل، 5 زخمی۔ فائرنگ کا واقعہ پیر سہاوا میں پیش آیا، زخمی اور لاشیں پمز اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ سپریم کورٹ نے شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کا عدم قرار دے دی۔ شوکت عزیز صدیقی ریٹائرڈ جج ہوں گے، انہیں ریٹائرمنٹ کے تمام فوائد ملیں گے۔ سپریم کورٹ نے جسٹس شوکت صدیقی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی سفارش بھی قلعدم قرار دے دی۔ 23 دفعات پر مشتمل فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کیا۔ اور اسلامی ترقیاتی بینک اور پاکستان کے درمیان $20 کروڑ قرض کا معاہدہ، سیکرٹری اقتصادی امور اور ISDB کے ڈائریکٹر نے فائنانسنگ معاہدے پر دستخط کیے۔ رقم سیلاب سے متاثرہ مکانات کی تعمیر، صاف پانی، حفظان صحت کی سہولت۔ پاکستانیوں تیار رہو، پیٹرول 1-2 نہیں 50 روپے مزید مہنگا ہونے کا امکان۔ IMF کی ایک بار پھر ڈومور کی گردان۔ IMF کا پیٹرول پر سیلز ٹیکس لگانے کا مطالبہ۔ پاکستان کی حکومت پیٹرول پر 60 روپے لیوی کے ساتھ 18% سیلز ٹیکس لگائے۔ GST لگنے سے پیٹرول 50 روپے فی لیٹر مہنگا ہو جائے گا۔ IMF نے ٹیکس ریونیو بڑھانے کے لیے تمام اشیاء پر سیلز ٹیکس کی چھوٹ ختم کرنے کی بھی شرط رکھ دی۔ کھانے پینے کی چیزوں، ادویہ، پیٹرولیم، مصنوعات، اسٹیشنری سمیت دیگر اشیاء پر GST سے 1300 ارب روپے محصولات جمع ہوں گی۔ حکومت نے بجلی صارفین پر 967 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے کا منصوبہ بنا لیا۔ بجلی کی 6 سرکاری تقسیم کار کمپنیز نے بجلی مہنگی کرنے کی درخواست کر دی۔ پاکستان نئے قرضے کے لیے IMF سے 3 سال کا پروگرام لے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی بلومبرگ سے گفتگو، کہا حکومت تمام قرضے وقت پر ادا کرے گی، معاشی استحکام کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہماری سمت درست ہے۔ چین دنیا کی دوسری بڑی بانڈ مارکیٹ ہے، شروع میں $30 کروڑ کے پانڈا بانڈز چینی مارکیٹ میں جاری کیے جائیں گے۔ بیرونی ادائیگیوں سے روپے پر دباؤ کا خدشہ نہیں، امید ہے ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مستحکم رہے گا، آئندہ مالی سال ترقی کی شرح بہتر رہے گی۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے بانی PTI کی آن لائن ملاقات کرانے سے معذرت کر لی، موقف اپنایا، جیل رولز میں اجازت نہیں ہے، آن لائن ملاقات نہیں کروا سکتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے کوٹ لکھپت جیل میں آن لائن ملاقاتوں کا اعلان کیا۔ انہوں نے فخریہ کہا پورے ایشیا کی پہلی جیل ہے جہاں یہ سہولت ہے، جیل رولز میں اجازت نہیں تو کوٹ لکھپت جیل میں غیر قانونی کام کیسے شروع ہو گیا؟ جسٹس اعجاز اسحاق نے کہا ہم لوگ بھی یہاں بیٹھ کر ڈرامہ ہی کر رہے ہیں، جہاں سے جیل حکام کو آرڈرز آ رہے ہیں وہاں سے آنا رک جائیں گے تو سب ختم ہو جائے گا۔ جب تک 200 افسران ایک نظریے کے لیے قربانی نہیں دیں گے ایسے ہی چلتا رہے گا۔ لوگوں کی جن کے نام جو ہیں ہائی کورٹ نے اپروو کیے تھے کہ ان کی ملاقات خان صاحب سے کرا دی جائے، ان میں سے بہت سو کی ملاقاتیں ابھی تک نہیں ہوئی۔ ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ جہاں ہائی کورٹ کے احکامات جو ہیں پوری طرح جو ہے پامال ہوتے ہیں۔ ایک بار نہیں بار بار عدالتی احکامات کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں شیر افضل مربت نے کہا وکلا کو بانی PTI سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ وزیر اعلیٰ KP نے رشوت دینے والوں کو تنبیہ کی تھی، کسی کو عملی طور پر اینٹ مارنے کا نہیں کہا۔ فوجی عدالتوں کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں 25 مارچ کو سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ تشکیل دے دیا۔ PTI کی صنم جاوید اور فیصل جاوید کو سینٹ کا الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ اپیلیٹ ٹریبونل نے الیکشن کمیشن کاغذات مسترد کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ کاغذات مسترد ہونے کے خلاف زلفی بخاری کی اپیل مسترد۔ ضمنی الیکشن کے لیے حماد اظہر اور مونس الہی کے کاغذات نامزدگی مسترد۔ یہ جو حکومت بنی ہوئی ہے یہ مینڈیٹ کے بغیر ہے، تاریخ کی بدترین دھاندلی کی گئی ہے۔ ایسی حکومت جس کے ساتھ عوام کی سپورٹ نہ ہو اور عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے آئی ہو تو وہ کیا ڈیلیور کرے گی؟ فارم 45 اور 47 کے حوالے سے وزیر اعظم سے بات ہوئی کوئی؟ یار وہ خود فارم 47 والا ہے، اس سے میں اس میں کیا بات کروں گا؟ 10 روپے کی بات کروں گا اس سے۔
वजीर आजम खुद फॉर्म 47 वाला है, धांधली पर उनसे क्या बात करूं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं ये मैंडेट चोरी करके इख्तिदार में आए, विफाक से सूबे के हुकूक लेकर रहेंगे। ATC इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर की 17 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अली मोहम्मद खान बोले अमरीकी कांग्रेस की समात में डोनाल्ड लू ने हुकूमत की मंजी ठोक दी, साइफर नहीं था तो बानी PTI पर किस चीज का केस है। शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत पर आर्टिकल 62-63 लगना चाहिए। अली अमीन गंडापुर बाहर डायलॉग मारते हैं, अंदर जाकर वजीर आजम के पांव पड़ जाते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ के लिए इजलास नहीं बुलाया जा रहा। इजलास के लिए अपोजिशन जमातें इलेक्शन कमीशन और अदालत से रुजू करेंगी। मौलाना फजल रहमान समझते हैं कि उनकी सियासत खत्म हो चुकी है, सुन्नी इत्तेहाद उन्हें सहारा देगी। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया था कि अगर हमारी हुकूमत बनी तो हम कौम को 300 यूनिट बिजली देंगे। आज किस तरह वजीर आजम ऐलान करता है कि हम बिजली की फी यूनिट में इजाफा करेंगे। 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा करने वाली जमातों ने बिजली महंगी कर दी। 76 साल गुजरने के बावजूद सियासतदान कहता है हालात ठीक नहीं, सख्त फैसले करना होंगे। वजीर आजम ने चारों सूबों के वजीर आला को इकट्ठा करके फैसला किया कि चंद पैसों की खातिर IMF की डगर पर चलेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं गजा के लोग पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, 25 करोड़ की नुमाइंदगी वाले मुल्क को गजा की मदद करनी चाहिए। अगर अमेरिका, फ्रांस, इसराइल का साथ दे सकते हैं तो 58 ममालिक के सरबराहों को सांप क्यों सूंघ गया। नो क्रॉस टॉकिंग। मैडम आप तशरीफ रखें प्लीज, आप तशरीफ रखें, आपका पॉइंट आ गया है ना। मैंने हजफ कर दिया, आप खामोशी इख्तियार करें, मैंने कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाया ना। पंजाब असेंबली में नून लीगी रुकन राशिदा लोधी की बानी PTI पर तनकीद पर ऐवान में शोर शराबा। डिप्टी स्पीकर ने मुतनाज़े बात करने से रोक दिया, अल्फाज को कार्रवाई से हजफ करा दिए। पंजाब असेंबली के ऐवान में दोनों जानिब से एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी हुई। डिप्टी स्पीकर अराकीन को सीट पर बैठने की हिदायत करते रहे। पंजाब असेंबली में अहमद खान भिजर अपोजिशन लीडर मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से बैरक गोल्ड कंपनी के वक्त की मुलाकात, कहा रिकॉर्ड एक मंसूबा बलोचिस्तान और इलाके की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा। वजीर आजम ने बैरक गोल्ड को बलोचिस्तान में मादनियात के दीगर मंसूबों में सरमायाकारी की तरगीब दी। कराची में डाकू माल के साथ जान भी छीनने लगे, 24 घंटे में बच्चे समेत 3 अफराद को कत्ल और 3 को जख्मी कर दिया। मलीर में डकैती मुजाहमत पर जख्मी इंजीनियर दम तोड़ गया। शुएब शफकत मीरपुर खास से खाला के घर इफ्तारी करने आया था। 3 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने डकैती मुजाहमत के दौरान गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक मुकाबले के बाद 2 डाकू पकड़े गए। सोराब गोठ में डाकुओं की फायरिंग से 7 साल का बच्चा जान बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाला एक डाकू मुकाबले में मारा गया। औरंगी टाउन में डाकुओं ने फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल और दूसरे को जख्मी किया। बेरोजगारी भी स्ट्रीट क्राइम की बड़ी वजह है। एडिशनल IG कराची की मंतक AIG खादिम रिंद ने एतराफ किया कि शहर में जराइम की वारदातें बढ़ी हैं। मुल्जिमान का अदालतों से छूट जाना भी एक वजह है। हमने 8000 मुल्जिम पकड़े, मुश्किल से 100 लोगों को सजा हुई, बाकी जमानत पर बाहर आकर फिर वारदातें करते हैं। उन्हें पता है होना तो कुछ नहीं है। कनकोट के असातिज़ा गैर महफूज डाकुओं की स्कूल टीचर को अगवा करने की कोशिश, मुजाहमत पर फायरिंग कर दी। अब्दुल करीम और वालिद जख्मी हो गए। स्कूल टीचर के मुताबिक 3 डाकुओं ने उन्हें स्कूल जाते हुए अगवा करने की कोशिश की। 5 दिन पहले अल्लाह रखियों को स्कूल से वापसी पर कत्ल किया गया था। सिंध रेंजर्स और पुलिस की कच्चे के इलाके में मुश्तरका कार्रवाई, कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, अगवा बराए तावान में मुलविस 21 मुल्जिम गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कार्रवाई के दौरान बिग्गी गैंग की पनागाहों को मिसमार कर दिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान मुबैना तौर पर टीचर अल्लाह रखियो नंदवानी के कत्ल और सहूलतकारी में मुलविस हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान में मरकजी सहूलतकार अमानुल्लाह, उसका बेटा और मुकामी वडेरा यार मोहम्मद भी शामिल हैं। गैंग कश्मोर, तंगवानी, कंदकोट में मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस है।
गिरफ्तार मुल्जिमान को कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। कराची समेत 5 शहरों के 6 सीवरेज सैंपल्स में पोलियो वायरस मौजूद। हैदराबाद, मुल्तान, कोयटा और फैसलाबाद की भी सीवरेज पोलियो पॉजिटिव है। कराची के माड़ी का औरंगी नाला, मोहम्मद खान कॉलोनी की सीवरेज पोलियो पॉजिटिव है। रवां बरस मुल्क में पोलियो वायरस के 2 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। महंगाई के बाद सहरो इफ्तार हो गया दुश्वार। बेबस शहरी कहते हैं अब तो 2 वक्त की रोटी भी पहुंच से दूर होती जा रही है, गुजारा मुश्किल हो गया है। हुक्मरान हमारी हालत पर तरस खाएं। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला, नायब सूबेदार यासिर शकील और सिपाही ताहिर नवीद शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक हमलावर ने काफिले से अपनी गाड़ी टकरा दी। वजीर आजम ने पाक फौज के काफिले पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत कर दी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखने का आज़म। इसराइली फोर्सेस ने अशरफा अस्पताल में इंसानी हुकूक की धज्जियां बिखेर दी। मुसलसल 5वें रोज अस्पताल पर कब्जा बरकरार, अस्पताल खाली करने की धमकी दे दी। हमास ने भी अशरफा अस्पताल के अहाते में इसराइली टैंक्स को निशाना बनाया। सहूनी फोर्सेस की खान यूनुस और रफा में बमबारी, 11 फलस्तीनी शहीद। जंग बंदी के लिए कतर, मिस्र और अमेरिका मुतारिक। मुसाद के सरबरा अमरीकी और मिस्र के हम मनसब से मुलाकात के लिए कतर पहुंच गए। फलस्तीनियों के लिए जानवरों का चारा भी अब नहीं रहा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डायरेक्टर का कहना है। भूख का शिकार फलस्तीनी जानवरों का चारा खाकर खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे। फलस्तीनी हुकाम ने आलमी बरादरी को खबरदार किया कि गजा में जंग से ज्यादा कहत से लोगों के मरने का खदशा है। आलमी इदारा सेहत के सरबराह का कहना है गजा में पूरी नस्ल का मुस्तकबिल संगीन खतरे में है। Result of the voting is as follows: 11 votes in favor, 3 votes against. Draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the council. यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में गजा में जंगबंदी की अमरीकी करारदाद मुस्तरद। रूस और चीन ने अमरीकी करारदाद को वीटो कर दिया। रूस ने मौक़िफ़ अपनाया। करारदाद का मकसद इसराइल को रफा में हमलों की इजाजत देना है। चीन ने कहा बिला मकसद करारदादों से गजा में अमन कायम नहीं हो सकता। 15 में से 11 मुल्कों ने करारदाद के हक में वोट दिया था। इंडोनेशिया में रोहिंग्या मुसलमानों की कश्ती उलट गई, 70 अफराद की हलाकत का खदशा। सूबे आचे के साहिली पट्टी पर कश्ती उलटने का अफसोसनाक वाकया पेश आया। डूबने वालों में बड़ी तादाद में बच्चे और खवातीन शामिल हैं। मकामी माहीगिरों ने 2 मर्दों और 4 खवातीन को बचा लिया। कश्ती में 150 से ज्यादा अफराद सवार थे। लापता अफराद की तलाश का काम जारी है। दिल्ली के गिरफ्तार वजीर आला अरविंद केजरीवाल को 10 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त वापस ले ली। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। दिल्ली में पुलिस ने मुजाहिरीन पर पानी की तोप चला दी। केजरीवाल को गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला हाउस से गिरफ्तार किया गया। उन पर शराब पॉलिसी केस में मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। खिलाड़ियों के इंतखाब में मेरी सिफारिश भी न मानी जाए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सिलेक्शन कमेटी को हिदायत। कहा PSL में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों को कैंप का हिस्सा बनाया जाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से कबल तरबियती कैंप के लिए खिलाड़ियों के इंतखाब पर तफसीली मुशावरत, मुख्तलिफ नामों पर गौर किया गया। एक्शन से भरपूर रैपिड खेप रेस का चौथा मरहला। खतरनाक ट्रैक पर झुलसा देने वाली गर्मी ने बाइकर्स का कड़ा इम्तहान लिया। जनूबी अफ्रीका के मैथ्यू हेयर्स और अमेरिका के ग्रोस मजमूई बढ़तरी में सबसे आगे निकल गए। येलो जर्सी पर कब्जा जमा। मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम सुहाना। मौसहरा में बर्फबारी और बारिश के बाद दिलफरेब मनाजिर। बुनेर में हल्की बारिश से खुनकी बढ़ गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी रिमझिम से मौसम अच्छा हो गया।